Good morning to all of you. Good morning, sir. So should I start or wait for another 5 minutes? Sir, wait for 5 minutes. Okay. Okay. Second. আগের দিন করেন শনিবার সিভিল টু সিভিল টু ওয়ান 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 ওরা 15টা করেছে। আমারটা 6000টাই ছিল বলে করেন ওই কখন আছে মদনগুলো করতে পারে মানে বেশি আসবে না 4-5টা দেখ না একটু দেরি করে যাবি মাল চলে যাবে দেরি করে ঢুকলেই চলে যাবে আমিও কাটানোর তালে আছি সেটা স্পিকারটা অন নেই বলবে স্যার বলছে কাটানোর তালে হ্যাঁ বহুত আমার দুটো একটা থিওরিয়াল ল্যাব তারপর শুভজিৎটা মাথা খারাপ করছে ল্যাবের জন্য সেই মালে তো কুড়ি বিশাল না
ओके, चलो शुरू करते हैं। ऑलमोस्ट सब लोग आ गए तुम लोग ना? Yes, sir. अच्छा, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्लास। सायंतन सर हैज नॉट स्टार्टेड येट। सो लास्ट क्लास आई हैव डिस्कस अबाउट द सिलेबस, एम आई राइट? Yes, sir. So if you once go through the syllabus, then you can find the first chapter, that is the classification of soil, that comes under the physical properties of soil. So in the physical properties of soil, normally this is a very large chapter which is divided in 4 sub chapter. The basic thing that is you need to know, that is the soil formation. Okay, so this soil formation, and the another important thing is phase system of soil. So you can ask me, sir, what is the phase system of soil? Normally any type of soil, we can divide it in 2-phase or 3-phase system depending on the properties of the soil. And phase system means it includes the soil parameter. Okay, that is normally तुम लोग देखोगे ये soil में क्या होता है. First thing is it is a solid system, it is totally solid, and another thing is that it may contain with water or it may contain with air. So air, water and solid, these 3 things. Okay, so you can say the soil as a 3-phase system. Okay, क्योंकि इसमें क्या क्या है, एयर है, वाटर है और सॉलिड है. Next, if we not consider the air, then there may be 2 things. One is the solids and another is water. So then we called it as a 2-phase system. ठीक है. अब इलाबोरेटली इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, विद द हेल्प ऑफ फेज डायग्राम. दैट पार्ट sir will describe you. Okay, that is the basic part, including the different relationships with the soil, the properties of soil. So that all this, the initial portion will covered by Sayantan sir. And the next part, that is the index properties of soil. These index properties of soil will covered by me. So before start the index properties, anyone can tell me that what is the soil in your idea? What is the soil? Anyone कोई बोल सकता है soil क्या होता है? Am I audible? Yes, sir. तो बोलो क्या होता है, सॉइल क्या होता है? अभिजीत. Mixture of organic material, minerals, water, sir. हाँ, मिक्सचर ऑफ बोलो ऑर्गेनिक मटेरियल
अपूर्व क्या बोला, फिर से बोलो, रिपीट इट। mixture of organic materials, minerals, हाँ water, हाँ, anyone else? Gases also, sir. Rasan? The soil is a thin layer of material covering the earth, sir. Covering the? Covering the earth's surface, and it's formed from the weathering of rocks, sir. दिस इज राइट। मतलब क्या होता है, देखो सॉयल तो तुम लोग जैसे बोल रहे हो कि हाँ इट्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक्स एंड मिक्सचर ऑफ इट इंक्लूड्स द वाटर एंड गैसेस, ठीक है, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक पार्ट्स इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, हाँ, इंक्लूड्स द वाटर, इंक्लूड्स द गैसेस, ठीक है, बट तुम मान के चलो कि मेरे को कुछ नहीं आता है, एंड देन व्हाट यू से दैट व्हाट इज द सॉइल, तुमको केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में कुछ नहीं पता है, तुमको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ नहीं पता है, तुमको तो सिंपली बोलना है कि सॉइल क्या होता है। तो सॉइल को इट कैन बी डिफाइंड इन ए मेनी वे, जैसे अपूर्व ने बोला थ्रू द केमिकल कॉम्पोजिशन, जैसे रोशन ने बोला थ्रू हिज ओन लैंग्वेज, ठीक है। तो डिफरेंट सिचुएशन के बेसिस में, डिफरेंट कंपोजिशन के बेसिस में वी कैन डिफाइन द सॉइल इन ए डिफरेंट वे। सपोज हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजीनियरिंग पॉइंट्स ऑफ व्यू से सॉइल को डिफाइन करेंगे, ठीक। अगर कोई जियोलॉजिस्ट होगा तो जियोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसका पॉइंट ऑफ व्यू से सॉइल को डिफाइन करेंगे, बिकॉज ही इज ए जियोलॉजिस्ट, उसको रॉक के बारे में पता है, उसको सॉइल के इंटीरियर के बारे में पता है। तो the soil is a substance existing on the material in the relatively thin surface zone within this root occur, and all the rest of the crust is grouped under the term rock, ठीक। But if we say that technically we can say that soil is the unaggregated or uncemented deposits. Technically we can say that the soil is it is not the aggregate, it is the unaggregated or the uncemented deposits of minerals or the organic particles or any fragments which is covering the large portion of the earth. Okay, so this portion which is covering the earth's crust, that is known as the soil, ठीक। तो अब हम लोग सॉइल को डिफरेंट वेराइटीज में डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट वेराइटीज, सॉइल का क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज हो सकता है, बोलो। जैसे बोल्डर भी क्या सॉइल का एक पार्ट है, तुम लोग देखे हो, बोल्डर देखे हो ना, सो दैट इज ऑल्सो ए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। और क्या होता है, सैंड इज ऑल्सो टाइप ऑफ सॉइल। नेक्स्ट ग्रेवल, क्ले, यस क्ले इज ए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। सील्ड क्या होता है, सील्ड होता है क्ले से थोड़ा बड़ा साइज के जो पार्टिकल्स होता है, ठीक है, जिसमें सैंड भी रहता है और क्लेस भी रहता है, दैट इज द सील्ड। तो दीज आर द डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सॉइल, ठीक। हम लोग सॉइल को जब हम लोग इसका पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, ग्रेन साइज मीन्स साइज ऑफ द सॉइल, डिफरेंट साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल जब स्टडी करेंगे तो हम लोग देखेंगे कितना
उसका डायमीटर और पार्टिकल साइज के बेसिस में इतना वेराइटीज़ में हम लोग उसको डिवाइड करते हैं, जैसे सैंड हो गया, क्ले हो गया, ग्रेवल, बोल्डर, व्हाट आर द डिफरेंट रेंजेस। सो कोई भी अगर हमको साइज इंजीनियरिंग में करना है तो व्हाट वी नीड टू से, दैट इज विल फॉलो द IS कोड। ओके, IS कोड क्या होता है ना, इंडियन स्टैंडर्ड कोड। सो दिस IS कोड वी शुड फॉलो। तो सॉइल में भी सेपरेट चैप्टर के लिए जैसे सेपरेट, जैसे ग्रेन साइज, सीप साइज एनालिसिस। सीप साइज एनालिसिस क्या होता है ना, सॉइल का साइज का डिफरेंट पैरामीटर होता है, तो दैट साइजेस शुड बी फॉलो बाय द स्पेसिफिक IS कोड। ओके, नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, कैसे कैसे सॉइल फॉर्मेशन होता है, कैसे उसका डिवाइड होता है, तो ये सारा चीज़ डिटेल्स में हम लोग नहीं पढ़ाएंगे, डिटेल्स में सर देखेंगे। तो नाउ वी कैन गो थ्रू द डायरेक्टली इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। अच्छा, एनी डाउट रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ सॉइल? बोलो, कनेक्शन एरर था तो इसलिए प्रॉब्लम हो। हेलो, हाँ, नाउ इज इट ओके? यस सर। अच्छा, तो किसी को कोई डाउट है सॉइल में, डेफिनेशन पार्ट ऑफ सॉइल, और वी कैन स्टार्ट डायरेक्टली टू द इंडेक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। Is it visible? यस सर। अच्छा, तो So what is the first thing, that is what is the index properties of soil? Means determination of index properties.
क्या होता है इंडेक्स प्रॉपर्टीज? किसी कोई आइडिया है? सी, index properties means there is some properties, okay, of soil which are used in the identification and the classification of soil. So basically index properties are those properties of the soil which are used in the identification and the classification of soil. These properties are known as the index properties. Now you can ask me, sir, what are the what do you mean by that identification and classification of soil? Classification of soil means कि कोई भी सॉइल को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में उसको डिवाइड करेंगे। ठीक, कैसे करेंगे ना? सपोज मान के चलो जी कोई भी एक सॉइल है जिसमें सैंड का पार्टिकल बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो क्या होगा, सैंड का पार्टिकल अगर बहुत ज़्यादा होगा तो उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा उस सॉइल का पार्टिकुलर। मान के चलो जिसमें सैंड का क्वांटिटी ज़्यादा है उस सॉइल को हम लोग बोलेंगे दैट इज द सैंडी सॉइल। In other hand, suppose in a type of soil there is the clay quantity is much more, then we can say that the soil is a clay soil. किसी में gravel का quantity ज़्यादा है. So these are the different properties of soil. Depending on, we can classify the soil in a different way. ठीक? And also you say that we can identify the soil. So these properties are known as the index properties of soil. Further, the index properties are sometimes divided into two categories. One is the properties of individual particles and the properties of soil mass. Properties of soil mass, also known as aggregate properties, also known as the aggregate properties. The properties of individual particles can determine from the remolded or the disturbed sample. अब क्या होता है disturbed sample, क्या होता है remolded sample, that we can discuss later. Okay? What is the undisturbed sample? हाँ, ये सारा चीज़ के बारे में हम डिटेल्स में बाद में स्टडी करेंगे. But first thing is, what are the index properties of soil? What are the properties? So these properties are, first one is, we can say that water content. What is that? Water content. मीन्स अगर कोई भी अगर सॉयल होगा, कोई भी मान के चलो सॉयल है, ये सॉयल है, ये सॉयल है, ये सॉयल है, तो सॉयल में क्या होता है, वाटर कंटेंट रहेगा. वाटर कंटेंट क्या होता है, इसको इनिशियल पार्ट में तुमको पढ़ना है. सर एक बार शुरू करेंगे तो फिर और आसान हो जाएगा समझना कि कोई भी सॉयल पार्टिकल होगा, एनी टाइप ऑफ सॉयल, तो उसमें क्या होगा, उसमें सपोज ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट. सो दिस presence of water is known as the water content of that soil.
Now we need to also know that how can we find out the water content of soil. Okay. You just simply know that some property determination of different properties are there in case of index properties. That is, the first one is water content. Second one is the specific gravities of soil. Specific gravity of soil. Then next, क्या बोला था? That is the classification of soil into, that is the particle size distribution. You can write down these things. What are the different index properties? First one is the water content. Next one is the specific gravity. Next, the particle size distribution. Then next, the consistency limit. Consistency limit. Particle size distribution लिखा. Then next, consistency limit. In situ density. In situ density. Then density index. Then the density index. So these properties are normally known as the index properties. जो 6 properties है, 6 properties. So these 6 properties are known as the index properties of the soil. Okay. So separately we can discuss about these 6 properties of soil. Any doubt about the index properties? No, sir. किसी को डाउट है तो बोल सकते हो. बोलो क्या क्या इंडेक्स प्रॉपर्टीज मैंने बोला अभी. रिपीट विथ मी. See, it is quite difficult to check everyone that he is understanding or not in the virtual method. Okay, if it is present in the blackboard or chalk duster method, then it is okay. Otherwise, this virtual method is quite difficult. So, any problem that you can tell me. Otherwise, I can proceed. First one is the water content, then specific gravity, in situ density, in situ density. Then the relative density जो है ना, relative density का, और you can say that the density index, इसका और एक नाम जो अभी मैंने बोला, that is the density index, relative density or the density index. Okay. And next is the consistency of soil. So first one is the water content. First properties that will describe, that is the water content of soil. What is water content? क्या होता है वाटर कंटेंट? बोलो, कोई आइडिया है किसी को? वाटर कंटेंट को you can also say that this is a moisture content.
Okay. Water content is also called as a moisture content. We can represent the water content by small w, by small w. Okay. So basically this water content is defined as the ratio of the weight of water. Water content is defined as the ratio of the weight of water to the weight of solid. Weight of water to the weight of solid in a particular mass of soil. सपोज एक मान के चलो ये 10 ग्राम का सॉइल है, तो पार्टिकुलरली 10 ग्राम का जो सॉइल है उसमें वाटर कंटेंट कितना होगा? दैट WC और स्मॉल w इज इक्वल टू क्या होगा? Weight of water upon weight of soil. हाँ, weight of water by the, this is the water content, this is water content, so this WC is equal to क्या होगा? बोल, weight of water, Soil. weight of water. क्या बोला मैंने? जे इट इज द रेशियो ऑफ weight of water. सपोज 10 ग्राम सॉइल में मान के चलो जे 10 ml वाटर, तो weight of water by the weight of solid or weight of dry soil. You can say that this is the weight of dry soil. This is represented by WS or WD. So this is the function of water content, that is the represented by WC, or you can also say it by small w. In terms of परसेंटेज, इसको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 100. ठीक है, तो you can get the quantity of water is present in that particular of soil. ठीक है, समझ में आया कैसे हमको वाटर कंटेंट फाइंड आउट करना है? कोई भी अगर सॉइल होगा तो वाटर कंटेंट का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा? तो वो कोई न्यूमेरिकल यहाँ से पूछ सकता है, तो जस्ट सिंपली रिमाइंड दैट वाटर कंटेंट इज the ratio of the weight of water to the weight of solid. It is a ratio of the weight of water to the weight of solid multiplied by 100, then you can get it in the percentage. Okay, now what are the different methods of water content determination? वाटर कंटेंट को हमको फाइंड आउट करना, तो देयर इज सम प्रॉपर मेथड्स इज नीड टू फॉलो. व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स? फर्स्ट वन इज सैंड बाथ मेथड. नेक्स्ट वन इज अल्कोहल मेथड. Third one is oven drying method. Next, calcium carbide method, and fifth one is the radiation method. और भी बहुत सारे मेथड हैं, ठीक. But generally we'll go through that oven drying method. This method is very important for determination of water content.
this method, this oven drying method is very important for the determination of water content. We will follow this method only. ठीक? But somewhere in any site, that is construction site, we can also follow the sandbath method. This is a quite fast method. This method is known as the sandbath method. So generally we will follow these two methods, that is sandbath method and the oven dried method. Any lab, any consultancy lab or in our soil lab, we will also follow this method, that is oven dried method. So in case of oven drying method, how can we find out the water content of a soil? This oven drying method is the most accurate method. This oven drying method is the most accurate method of determining the water content. And though it is a very accurate method, so we are using this method in a laboratory, because any type of result, any properties, first thing is you need to calculate the water content of the soil. अगर कोई भी कंसल्टेंट्स में लोगों को जाना है, कोई भी अगर रिपोर्ट मेजर कर बनाना है, प्रिपेयर करना है, तो फर्स्ट थिंग इज तुमको वाटर कंटेंट, सॉइल का वाटर कंटेंट तुमको बेसिक थिंग है, तो इसको निकालना ही पड़ेगा. सो लैब में वाटर कंटेंट अगर फाइंड आउट करना है तो विल फॉलो दिस ओवन ड्राइंग मेथड. तो कैसे करना है? फर्स्ट थिंग क्या करेंगे हम लोग ना, स्पेसिमेन ऑफ सॉइल सैंपल, specimen of soil sample will collect. Okay, soil sample को हम लोग कलेक्ट करेंगे and put it in a clean container. ठीक है. अब what are the exact method क्या है और कैसे इसको हम लोग करेंगे, that thing will describe elaborately in the lab classes. Okay, but इतना जानो कि एक specimen of soil sample, एक soil sample we collect a soil sample and kept it in a container, and this container is controlled by a oven. देखना लैब में आके तुम हम देखोगे कि लैब में एक ओवन है. ठीक है, तो ओवन में तो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. ठीक है, बाय रोटेटिंग द मेन स्टफ. तो जनरली इन केस ऑफ ओवन ड्राइंग मेथड will maintain a temperature of almost 105 to 110 degree. 105 to 110 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, अब देखो 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम लोग को सॉइल को रखें तो कोई भी सॉइल नॉर्मली ड्राई हो जाएगा. अब ये सॉइल ड्राई जो प्रोसेस है, दिस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइप्स ऑफ सॉइल. तुम अगर बोलोगे कि सर सैंडी सॉइल है जिसमें सैंड का क्वांटिटी ज़्यादा हो, तुम देखे हो अभी टेम्परेचर इतना हाई है गर्मी के टाइम में, तो क्या हो तुम देखो कि सैंड कितना जल्दी ड्राई हो जाता है. बट तुम अगर कोई क्ले सॉइल को ले लो, कोई भी क्ले टाइप ऑफ सॉइल को लो, तो उसका देखना कि उसमें जो सॉइल है उसको ड्राई होने में टाइम ज़्यादा लग रहा है सैंडी सॉइल से. ठीक, तो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम्स ऑफ टाइप ऑफ सॉइल. ठीक है, बट नॉर्मली विल टेक 24 आवर टाइम.
ठीक है, 24 आवर टाइम हम लोग लेते हैं टू ड्राई द सॉइल इन द ओवन। ठीक है, तो टेम्परेचर कितना हम लोग फॉलो करते हैं 105 टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना टाइम के लिए उसको हमको रखना है ओवन में, नॉर्मली 24 आवर के लिए रखना है। ठीक है, तो एक बार सॉइल अगर मेरा ड्राई हो गया, हाँ, तो उससे क्या होगा, इनिशियल ड्राई होने से पहले जो सॉइल था उसको एक बार हमको मेज़र करना है, और ड्राई होने के बाद में एक बार हमको मेज़र करना है। तो दोनों को अगर डिफरेंस कर देंगे, ठीक है, दोनों को अगर हमको डिफरेंस कर देंगे तो क्या होगा, उससे हमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। कोई भी एक कंटेनर में हमको पहले सॉइल लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंटेनर है, कंटेनर का वेट विल टेक दैट वेट ऑफ द कंटेनर। देन नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट विल टेक द कंटेनर प्लस दैट सॉइल बिफोर ड्राइंग है। फर्स्ट विल टेक द weight of the container. The next thing is that we'll take the weight of container plus the wet soil. Clear? And last में हमको क्या करना है, लास्ट में हमको करना है that is the mass of container with the lid and the dry soil. So in this way we can calculate the water content of the soil. Okay, any doubt? वाटर कंटेंट डिटरमिनेशन में किसी को कोई डाउट है ओवन ड्राई मेथड में? बोलो। अरे कोई कुछ बोल ही तो नहीं रहा है, हाँ? देवनाथ, मिलन, कुछ प्रॉब्लम है ओवन ड्राई मेथड में? नो सर। जिज्ञेस कर। किसी का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो बोलो सर, कैसे हो रहा है ओवन ड्राई मेथड? सबको समझ में आया कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं ओवन ड्राई मेथड को? अपूर्व, यस सर। तो वाटर कंटेंट हमको कैसे फाइंड आउट करना है ओवन ड्राई मेथड में? बोलो, व्हाट आर द डिफरेंस? वाटर कंटेंट हमको तो निकालना है ना सॉइल से। यस सर। तो बोलो कैसे करना है? सर फर्स्ट स्टेप में सर जो कंटेनर रहेगा सर उसको सर क्लीन कर लेंगे, ड्राई कर लेंगे, और कंटेनर को सर वो जो वेट है उसका सर मेजर कर लेंगे कंटेनर का वेट। उसके बाद सर वेट जो है सर कंटेनर का मेजर करके उसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर सर वो सॉइल का सैंपल सर वो कलेक्ट कर लेंगे, और वो जो सॉइल का जो सैंपल कलेक्ट करेंगे तो उसका जो टॉप लेयर ऑफ जो सॉइल रहेगा उसको
रिमूव करके वो जो बॉटम वाला जो गीला सॉइल होगा, दैट इज द Wet वेट soil? पोर्शन, दैट इज द वेट पोर्शन ऑफ द सॉइल। हाँ यस सर वेट सॉइल सर, उसको सर कलेक्ट कर लेंगे और कंटेनर में सर वो सर जितना हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी रहेगा सर उसको उसमें रख देंगे और उसके बाद फिर सर वो कंटेनर का मास नोट डाउन कर लेंगे। उसके तो- बाद सर कंटेनर को सर हॉट एयर ओवन में सर रखेंगे एक 110 to 115 डिग्री सेल्सियस और उसको सर 24 आवर्स तक छोड़ देंगे सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए। हाँ, फिर हम लोग उसका रीडिंग ले लेंगे। यस सर। तो यही है प्रोसेस। तो तुमको एक चीज़ याद रखना है, जो वाटर कंटेंट अगर हमको फाइंड आउट करना है, जो वाटर कंटेंट इज द रेशियो ऑफ द वेट ऑफ वाटर एंड द वेट ऑफ सॉलिड। सो फर्स्ट थिंग इज वेट ऑफ वाटर जो है, वेट ऑफ वाटर हमको फाइंड आउट करना है, वेट ऑफ सॉलिड हमको फाइंड आउट। सो वेट ऑफ वाटर मीन्स क्या होगा फिर ना, अगर मास कंटेनर का जो है, जिस कंटेनर में हमको सॉइल का सैंपल लेना है, तो दैट एम्प्टी कंटेनर के अगर हम लोग वेट ले लेंगे एंड एम्प्टी कंटेनर का वेट हम लोग ले लिए एंड उसके साथ क्या होगा, इंक्लूडिंग द वेट सॉइल। एक बार एम्प्टी कंटेनर का वेट लेंगे, फिर एम्प्टी कंटेनर प्लस द कंटेनर विथ द वेट सॉइल। तो उससे क्या होगा, दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, दोनों को अगर हम लोग माइनस कर देंगे, दैट द वेट सॉइल माइनस द कंटेनर ऑफ ड्राई सॉइल, तो क्या होगा, वेट ऑफ वाटर मेरे को मिल जाएगा। हमको तो वेट ऑफ वाटर फाइंड आउट करना है ना। एंड नीचे क्या रहेगा, वेट ऑफ सॉलिड। वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से आएगा, वेट ऑफ सॉलिड कहाँ से आएगा ना, ड्राई सॉइल का जो वेट है, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल माइनस द कंटेनर, तो हमको वेट ऑफ ड्राई सॉइल मिल जाएगा। तो दोनों पोर्शन अगर मिल गया तो उसका रेशियो कर देंगे, इनको 100 कर देंगे, तो we can easily find out the water content of soil। ठीक, अच्छा। नेक्स्ट थिंग इज द सैंड बाथ मेथड। सैंड बाथ मेथड मैंने अभी क्या बोला, द सैंड बाथ मेथड इज बेसिकली ए फील्ड मेथड। दिस इज ए फील्ड मेथड for determination of the water content. This is a field method for the determination of water content. This method is rapid but not the accurate. इसीलिए ये accurate नहीं है बोल के हम लोग इसको लेबोरेटरी में यूज़ नहीं करते हैं। We are applying this method in the site construction purpose। ठीक है, जिसमें एक्यूरेसी थोड़ा अप डाउन करने से भी चलता है। सो द कंटेनर विथ द सॉइल इज प्लेस्ड ऑन ए सैंड बाथ। द कंटेनर विथ द सॉइल, ठीक है, प्लेस्ड ऑन ए सैंड बाथ एंड हीटेड ओवर ए केरोसिन स्टोव। हीटेड ओवर ए केरोसिन स्टोव। द सॉइल बिकम ड्राई विद इन half to 1 hour. Now the water content is then determined from the previous equation, means जो अभी मैंने बोला तुम लोग को, that is the weight of water by the weight of soil. Once it will become the dry, तो dry soil मेरे को एक बार मिल गया, तो easily we can calculate the water content। तो तुमको इतना याद रखना है, दे इन केस ऑफ सैंड बाथ मेथड द सॉइल इज बिकम ड्राई विद इन हाफ, कितना टाइम में होता है ड्राई, नॉर्मली 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स। इसलिए रैपिड मेथड विच इज यूज फॉर द फील्ड मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द वाटर कंटेंट। ओके, दिस मेथड इज रैपिड बट नॉट द एक्यूरेट। ठीक है, अच्छा। नेक्स्ट एल्कोहल मेथड। एल्कोहल मेथड क्या होता है, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ फील्ड मेथड। नॉर्मली इसमें भी वेट सॉइल सैंपल जो होता है, वेट सॉइल सैंपल वी कैन केप इन ए इवापोरेटिंग डिश। जो सॉइल सैंपल है उसको पुट दैट सॉइल इन ए इवापोरेटिंग डिश
and mixed with sufficient quantity of methylated spirit. The dish is then properly covered and mixture is ignited. Means नीचे से we can burn the mixture. So this mixture is kept stirred by the wire during the ignition. Since there is no control over the temperature, it should not be used. The soil contains a large percentage. ठीक है? So we will not follow the alcohol method. Generally we will follow the sandbag method for the site construction site. Okay. अच्छा, बाकी जो तुम लोग का था कैल्शियम कार्बाइड मेथड, हाँ, इसको तुम लोग बुक से देख लेना, उतना इम्पोर्टेंट है, सब है ही नहीं। अल्कोहल मेथड यहाँ पे देखो, मैंने ऑलरेडी लिख दिया हूँ यहाँ पे, हाँ, जे द सॉइल सैंपल इज टेकन इन इवेपोरेटिंग डिश, द सैंपल इज देन मिक्स्ड विद द methylated spirit. Next, the quantity of the spirit required is 1 milliliter for every gram of soil. ठीक है, quantity of this methylated spirit required is 1 milliliter for the every gram of soil. The methylated spirit, that is methyl spirit, is then ignited. The mixture is then stirred with the spatula. After the methylated spirit has burnt away completely, the dish is allowed to be cooled and the mass of dry soil is obtained. Disadvantage देखो, cannot be used if the soil contains the large proportion of clay and the organic matter. Methyl spirit is volatile, so extra care is required. ठीक है, and the not accurate, तुम लोग बोले ही हो तुम लोग, it is not accurate method. प्रोसीड्यूर यहाँ पे दिया है, प्रोसीड्यूर की जरूरत नहीं है। कैल्शियम कार्बाइड एक बार देख लो, कैल्शियम कार्बाइड क्या है? कैल्शियम कार्बाइड, दिस is the method of radiation of water content, which makes the use of fact that when the water reacts with the calcium carbide and acetylene gas is produced. ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड में तो देखना है यहाँ पे इस चीज, it is a determination of the water content which makes use of the fact that when the water reacts with the calcium carbide, acetylene gas is produced. Which gas is produced? Acetylene gas is produced. Procedure: wet sample is placed in a sealed container which is containing the calcium carbide. The test require about 6 grams of soil. ठीक, the pressure of the acetylene product gas on the diaphragm of the moisture, इसका जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानकर रखो कि कैल्शियम कार्बाइड जो है कैल्शियम का वाटर कंटेंट के साथ यूज करने के लिए नॉर्मली कैल्शियम कार्बाइड यूज करते हैं एंड ये प्रोड्यूस करते हैं एसिटिलीन गैस। ठीक है, बस। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट एंड नेक्स्ट विल गो थ्रू द what is the specific gravity of soil। हाँ, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल क्या होता है, इसके लिए हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, रेडिएशन में जरूरत नहीं है। पिक्नोमीटर मेथड क्या होता है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट, अच्छा और एक चीज़, किसी कोई डाउट है? सर, methylated spirit is used generally for which purpose? फिर से बोलो। Sir, methylated spirit is used
generally for which purpose in alcohol method? For determination of water content, वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं मिथाइलेटेड स्पिरिट को. It's one- which method? For what purpose it is used? What purpose? The purpose is to measure the water content. Methylated spirit, babu, nothing but it's a type of method, special method. Okay, this method is known as the alcohol method. Okay. Yes, sir. Sir, but Methylated it is spirit- generally a volatile item, no? हाँ, volatile item, fully volatile item, and this method is known as the alcohol method, which is totally not accurate at all. ठीक है. इसका जो रिजल्ट आता है अल्कोहल मेथड में वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आता है. इसीलिए मिथाइल अल्कोहल जो यूज़ करते हैं मीन्स और मिथाइल स्पिरिट जो यूज़ करते हैं अल्कोहल मेथड में, इसको हम लोग जितना कम पॉसिबल है उतना कम हम लोग इसको यूज़ करते हैं. इससे क्या होता है, Okay. जो स्पिरिट जो होता है, कोई भी अगर तुम मान के चलो कोई भी स्पिरिट का वर्टाइल नेचर में बहुत ज़्यादा वर्टाइल होता है, तो मैक्सिमम उसको इवापोरेट हो जाता है ना. दैट इज़ द प्रॉब्लम. और सारा का सारा जो भी मेथड से सब वाटर कंटेंट फाइंड आउट करने के लिए है. मैं तो ऑलरेडी बोला हूँ कि कंस्ट्रक्शन साइड में जनरली विल फॉलो द सैंडबाथ मेथड और समटाइम विल फॉलो द अल्कोहल मेथड, दैट इज द मिथाइल स्पिरिट मेथड. तो बहुत कम टाइम में. बोलो और कोई डाउट है? अच्छा, क्लास के बाद एक असाइनमेंट का लिंक मैंने भेज दूंगा. ठीक है. उसमें 2-3 क्वेश्चंस रहेगा आज के जो टॉपिक में डिस्कस किया उसके ऊपर. तो उसको करके फिर सबमिट कर देंगे. ठीक है. Okay, sir. ओके सर. अच्छा, एक बार मुझे अटेंडेंस ले लेता हूँ. चलो, ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू. यू कैन लीव नाउ. थैंक यू सर. थैंक यू सर.